Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back once again, and today's lecture is going to be obviously on OCM, Organization of Commerce and Management. Now very quickly, हमारी गाड़ी कहाँ तक आ चुकी है? वी कम टू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. उसके अंदर जो पहला फंक्शन था, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है. ओके, ये सारे फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको मिस्टर हेनरी फियोल ने दी थी. उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा ग्रुप करके क्या कहा था, ऊपर लिखा है, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. दैट प्लानिंग पार्ट हमने ये लास्ट टाइम कर लिया था. तो ये जो आपको 6 मुद्दे यहाँ पे दिखते हैं, उसमें से प्लानिंग हमने लास्ट टाइम कर लिया है. आज का हमारा मुद्दा है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, एक बात मैं क्लियर करा दूँ कि मुझे पर्सनली ये दो वर्ड्स के बीच में जो है तो सेम, बट कन्फ्यूजन काफ़ी होती है कि ये ऑर्गेनाइज ये Z वाला है कि ये ऑर्गेनाइज S वाला है. थोड़ी इंक्वायरी हमने की, थोड़ा गूगल पे हमने पढ़ा, फिर हमको ये समझ में आया कि दोनों वर्ड्स एक ही है. आप उसे Z के साथ में या ये वाले S के साथ में यूज़ कर सकते हो. गूगल पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि आपके सामने पब्लिक कौन सी है, जो अमरीकी स्टाइल है, द अमेरिकन स्टाइल, विच इज़ द मोर मॉडर्न स्टाइल. द मोर मॉडर्न स्टाइल यूजेस Z. ओके, इनफैक्ट काफ़ी जगहों पर जहाँ पे हम भारतीय S यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी अंग्रेज़ी काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों से आई है. एंड वही गूगल की जानकारी कहती है कि अगर आपके सामने की पब्लिक अंग्रेज़ या इंग्लैंड या लंदन वाले हैं, तो आप S का इस्तेमाल कर सकते हो. बॉटम लाइन, दोनों का इस्तेमाल करना फ़ाइन है. टेक्स्ट बुक में वो Z यूज़ करते हैं. तो मैंने हमारे सारे जगहों पर जहाँ पे ये वर्ड आया है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, उसमें Z यूज़ किया है. सिंपल एज दैट. तो मतलब मैं मेरा गिला शिकवा दूर कर रहा हूँ इन दो वर्ड्स के कन्फ्यूजन के बारे में. आपका कन्फ्यूजन है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अपना क्लियर करा दिया. सो टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ड ऑर्गेनाइजिंग, अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. वेल, मतलब कुछ इस तरह है. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर, सच एज मैन, मनी, मटीरियल, मशीन एंड मेथड,
grouping and arranging them properly for achieving the objectives. When a movie, जब एक चित्र बनने वाली है, एक पिक्चर बनने वाली है, तो ये जो फंक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. पिक्चर बनाने के लिए पहले प्लानिंग तो लगेगी ही डेफिनेटली, बट उसके बाद में वो प्लान को एक्चुअली गाड़ी पे लेकर आना, उस प्लान को उसको मोशन में डालना, कार्य में डालना, उसको कार्यशील करना, ओके, एक्शन में डालना, वो ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है. तो हीरो हीरोइन रेडी है, उन्होंने अपने डेट्स दे दिए. एग्जाम्पल, येस्टरडे मैंने कहा तो या तो पेपर में या तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मिस्टर अक्षय कुमार ने अपने आने वाले पिक्चर में 15 दिन की शूटिंग के लिए टाइम दिया है. तो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को पता है क्या, अक्षय कुमार बहुत बिजी है, 15 दिन उसका मिल रहा है. बाकी वो बहुत डिसिप्लिन्ड बंदा है, 15 दिन सुबह से लेके रात तक हमारा काम कर देगा. बट कपड़ा, सेट, अपैरेटस, कैमरा, साउंड सब रेडी, ऑर्गेनाइज कर लो. उसके 15 दिन में ये सब पहले ही, तो ही पिक्चर बनने का जो उद्देश्य है, व्हाट इज दैट, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, वो सफल हो पाएगा. तो दैट इज द मीनिंग, जमा करना. ओके, क्या जमा करना, लोगों को जमा करना. ओके, अगर आपको कहाँ पे धरना लेकर जाना है, ओके, तो लोगों को तो जमा करना पड़ेगा. लोग आ गए यार, पर धरने की जगह तो 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक कैसे पहुंचे. हाँ, तो पहले ही गाड़ियों का, बस का, ट्रैक्टर का, ट्रक का बंदोबस्त करना चाहिए था ना. वहां पर लेके जाओगे, अगर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएगी तो लोग तो भूखे रहेंगे ना. हाँ, धरना करना है तो आवाज तो बड़ी आनी चाहिए. हाँ, तो कुछ खाने का, वड़ा पाव का, सैंडविच का बंदोबस्त तो कर लो, पानी का बंद. दैट्स ऑल ऑर्गेनाइज. इफ यू वांट, इफ यू हैव थॉट अबाउट समथिंग, सोचा है और उसको सफल करना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप ऑर्गेनाइज करना. ओके, ये तो हो गया मीनिंग. अब उसका जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक में 2-3 लोगों का डेफिनेशन है. इन लोगों ने ओडोनल एंड नूट्स, ओके, उन्होंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन दिया था. ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, कि इसके अंदर क्या क्या आता है. द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. नाउ विल कम टू दिस कि ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज का मतलब क्या है. नेसेसरी टू accomplish goals and plans. आपने क्या सोच के रखा है. The assignment of these activities to appropriate departments, assigning becomes very important, and the provision of authority, delegation and coordination in the importance that we are going to learn today. ये सारे words क्या, goals, plans, assignment, appropriate department, provision, authority, delegation आने वाला है. This is what Nudes and O'Donnell का कहना था. फिर जेम्स डी मूनी एंड एलन कैम्बल राइली, इन्होंने थोड़े छोटे में बताया है. ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, 2 लोगों का, ओके, 3 लोगों का, 10 लोगों का एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस. जब ये लोग साथ में आते हैं तो इनके सोच में एक सामान्य, ओके, एक सेम मुद्दा है, तो उसको पूरा करने के लिए जो काम होता है उसको आप ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन तो आप दुकान के लिए, कंपनी के लिए वर्ड यूज कर सकते हो. ऑर्गेनाइजिंग एक अलग वर्ड होता है. ओके, हम ऑर्गेनाइजिंग पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. देयर आर 10 पॉइंट्स. 10 पॉइंट्स के बाद में हमारा जो मैजिक फ्रेज होता है या वर्ड होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट मुद्दा इंपॉर्टेंस का, वो इज दी function of organizing so important. Well, पहला, facilitates administration as well as operation. Now, grouping का word आपको याद रहेगा. Now, when you do the process of organizing, तो ये grouping का काम हो जाता है. इसके पहले मैंने फिल्म या फिल्म के शूटिंग की बात की. फिल्म बनाने का है तो ऑर्गेनाइजिंग का काम पहले होना चाहिए. मैन, मटीरियल, लेबर, ये सारे मशीन्स एक साथ में आ जाना चाहिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू मशीन, साउंड का डिपार्टमेंट अलग होता है. तो जब ऑर्गेनाइजिंग का काम हो रहा है, साउंड एक बंदा हैंडल नहीं करता. इफ देर आर 5 एक्टर्स
10 एक्टर्स जिनकी शूटिंग साथ में होने वाली है, तो सबका जो माइक सिस्टम है, जो आजकल बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ओके, द माइक इज प्लेस्ड समवेयर ऑन द बैक साइड ऑफ द एक्टर ताकि वो कैमरा में नजर ना आए, या कभी कभी ऊपर से लटका हुआ होता है. सो दैट माइक वर्क्स ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यू रिक्वायर स्पेशलाइज्ड पीपल. तो आप बोलोगे साउंड वाले आप लोग 5-6 लोग, ये आपकी टीम है. लाइट वाले ये आप लोग 10-15 लोग, ये आपकी टीम है. ओके, अगर कोई एक्शन सीन है, गाड़ी चला रहा है, हाँ, तो ये आपकी टीम है. आप ग्रुप करते हो. व्हेन यू ग्रुप, लोगों को अपनी टीम का पता चलता है और अकॉर्डिंगली उनका काम बेहतर बनता है. बिकॉज अगर एक 5 के टीम में एक को कुछ नहीं पता, दूसरे को पता होगा. इसको कुछ नहीं पता मतलब एक पॉइंट नहीं पता, वो दूसरे से हेल्प ले सकता है. सो व्हेन, तो उसके वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और उसके वजह से जो उसका आगे ऑपरेशन होता है, जब उसको एक्टिवेट किया जाता है, सारे काम स्मूथली हो जाते हैं. सो इट फैसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके आगे जब उसको क्या एक्टिवेट किया जाएगा, उसको एक्चुअली कार्य में लाया जाएगा, ओके, उसके ऊपर काम किया जाएगा, वो भी सक्सेसफुल एंड पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा. दूसरा मुद्दा, व्हाट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन. नाउ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, पढ़ाई करके बन सकते हो, ओके, हाँ, बट यू कैन बी अ जनरल डॉक्टर. मतलब क्या है? आपने क्लिनिक बना दिया, सिर दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सब लोग आपके पास आते हैं. बट व्हेन द मुद्दा इज वेरी सीरियस, आपने दवा दिया, अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, देन यू विल टेल दैट पेशेंट कि सर देखो, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारे मेडिसिन से नहीं हो पा रहा है, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा. वो स्पेशलिस्ट सिर्फ आँख का, दिमाग का, नाक का, कान का, गले का, वो स्पेशलिस्ट है. सो आई रिपीट, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इज डन, दैट स्पेशलाइजेशन हैपेंस. इसके पहले जैसे मैंने बताया कि लाइटिंग वाली टीम शूटिंग में, साउंड वाली टीम, एक्शन वाली टीम, गाड़ी चलाने वाली टीम, ये सब लोग अपने अपने काम में निपुण हो जाते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को 10 काम नहीं दिया जाता. उनको बोला तो ये टीम का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली एक क्रिकेट टीम में एक बॉलर एक स्पेशलिस्ट होता है, एक बैट्समैन एक स्पेशलिस्ट होता है. ओके, विकेट कीपिंग का जॉब सब लोग नहीं कर सकते हैं, मे बी 1 या 2 लोग ही पूरे, तो वो स्पेशलिस्ट है. जब वो नेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो वही अपना काम करते हैं. ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग, जब ये फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बिकॉज यू नो कि कौन से काम को अच्छे तरीके से कर सकता है. ओके, इसको हम थोड़ा बेहतर आगे पढ़ेंगे. तीसरा मुद्दा, इंपॉर्टेंस का. यस, डिफाइंस द जॉब्स properly. Now, if you are someone who maybe today or in the past has watched comedy serials, okay, especially ये जो मेरे बगल में है, okay, a serial which was वेरी फेमस इन द 90s. मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग तो 90s में पैदा हुए हो. बट दिस सीरियल बाय द नेम ऑफ फ्रेंड्स, और इनके जो 6 कैरेक्टर्स हैं, ओके, वो इतने प्यारे हैं, इतने लोग उनको प्यार करते हैं कि 20 साल होने के बाद, उससे ज़्यादा साल होने के बाद भी ये लोग इतने फेमस हैं. नाउ मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब फ्रेंड्स सीरियल, जो मुझे लगता है करीबन 10 सीजन तक चला, मतलब 10 सालों तक चला, ओके, जब इसको सोचा गया, किसी ना किसी ने तो कास्टिंग किया होगा, और इसमें देयर आर 6 कैरेक्टर्स. ओके, सो देयर इज समबडी बाय द नेम ऑफ चैंडलर, समबडी बाय, किसी का नाम जोई है, किसी का नाम मोनिका है, किसी का नाम रेचल है. ओके, समबडी ने सोचा रहेगा, ये ना जोई का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, ये ना मोनिका का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, कर सकती है. तो आई रिपीट, ऊपर क्या दिया गया है? राइट मेन ऑन राइट जॉब. अगर यहाँ पे कास्टिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती तो ऑटोमेटिकली उनके परफॉर्मेंस में भी गड़बड़ हो जाती. सो आई रिपीट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर कोई बोलेगा सर मैंने ये सीरियल देखा है, मैंने ये सीरियल पूरे 10 सीजन देखे, मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ, 3 बार देख चुका हूँ, तो वो सभी लोग बोलेगी क्या सर इनका रोल वो नहीं कर सकते थे,
उनका रोल इन्होंने अच्छा हुआ नहीं किया, इससे बेस्ट है इन लोगों का जो सिलेक्शन होता ना, राइट मैन ऑन द राइट जॉब, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता। सो आई रिपीट, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू जॉब्स प्रॉपरली। भाई तेरा काम ये है तू ये कर, तेरा काम ये है तू ये कर। ओके, मूविंग ऑन। द फोर्थ पॉइंट, व्हाट? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी बैंक दैट यू गो। जब सामने आप एक व्यक्ति के पास जाते हो, ओके, एक प्रॉब्लम को लेकर, बोलेगा देखो सर मेरे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम दूर करने का, मेरा डिपार्टमेंट नहीं, आपको मैनेजर के पास, आपको बड़े साहब के पास जाना पड़ेगा। जब ऑर्गेनाइजिंग, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इज डन, automatically during the process of organizing, if somebody is given an authority, he also has to bear on his kandha the responsibility। अगर आपको ये डिसीजन, अगर बैंक में एक मैनेजर को डिसीजन, क्या अथॉरिटी दिया गया है, किसको लोन मिलेगा, किसको लोन नहीं मिलेगा, लोन 10, 12, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का होता है, तो मैनेजर इंटरव्यू करता है, मैनेजर समझता है, सोचता है, पेपर्स देखता है, फिर अप्रूव करता है, यस आपको लोन मिलेगा, 1 करोड़ का लोन दे दिया। और बाद में अगर पता चला, इफ लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड, व्हाट, अरे सर जिसको लोन दिया वो तो भाग गया, चंपत हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मैनेजर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज गिवन द अथॉरिटी। उसको ये अधिकार दिया गया था क्या, कि भाई लोन देना नहीं देना तेरा काम है, तू डिसाइड कर, तू ना बोल सकता है, ओके। बट अगर हाँ बोलेगा और अगर सामने वाले ने चीटिंग कुछ कर दिया, देन मैनेजर तुझे 2 बातें तो सुननी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी होती है। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको अथॉरिटी दी जाती है, यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज डन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इज डन। सो यू आर टोल्ड टीम दिस इज योर अथॉरिटी, बट यस गड़बड़ होगा ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी। Next, 5th point, establishes coordination, very important। You see there are many functions, okay। अगर एक फिल्म फेयर ऑर्गेनाइज किया जाना है, फिल्म फेयर, इट्स अ बिग अवार्ड शो, what is one function to make sure that the people, the actors are coming on time? yes, वो अपने टाइम से आते हैं, बट पता तो होना चाहिए अगर उसको अवार्ड मिलना है कि वो आया है कि नहीं आया। somebody has to coordinate, somebody has to coordinate the performances, कि भाई आप पहले आए, दूसरे वाली टीम आ जाओ, अपने कपड़े पहन लो, बैक स्टेज आ जाओ। ओके, आई रिपीट, यू हैव टू मेक श्योर इतना बड़ा शो अगर उसको सक्सेसफुल होना है, सारे पहिए 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 एक के बाद एक चल रहे हैं, वरना एक घड़ी में जो पहिए व्हील्स चलते हैं वो बराबर से टाइम नहीं दे पाएंगे। सो आई रिपीट, जब ऑर्गेनाइजिंग का काम सही से होता है, ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन, सी देयर आर 2 वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन, बराबर। आजकल लोग स्मार्टफोन यूज तो करते ही, ये स्मार्ट वॉच भी यूज करते हैं, काफी लोग एप्पल का यूज करते हैं, बराबर। तो उनके पास घर पे जाके कंप्यूटर भी एप्पल का होता है। तो जब वो कोई काम अपना स्मार्टफोन में डालते हैं, उसी पल भर में, नेक्स्ट सेकेंड में वो काम उनको उनके वॉच पे दिखता है। घर पे जाके अगर वो पीसी को ऑन करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करेंगे, वहां पर भी उनको आ जाता है। दैट सिंक्रोनाइजेशन। इसको अलग बोलो, उसको अलग बोलो, उसको अलग बोलो, नहीं, एक को काम दिया, वो सिंक हो गया, वो कनेक्ट हो गया दूसरे डिवाइस के साथ, तीसरे डिवाइस के साथ। 10 बार मुझे काम बोलने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू सी क्लीनलीनेस का काम, ओके, कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब बाबा मैं झाड़ू मारूंगा, तू कुछ लेके आ, उसके अंदर तू कचरा डालना, तीसरे को बोल कचरा लेके जाने के लिए, हाँ तो ही तो ये काम बराबर होगा। अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, ओके, मॉनसून के पहले गटर के क्लीनिंग का काम तो कचरा हो जाता है, गटर में से जितना भी कचरा रहता है ना उसको बाहर निकाला जाता है, उसके बाद में वो वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। तो आप सोचते हो अरे यार ये बाहर तो निकाल दिया कचरा, ओके, बट बरसात आएगी और ये कचरा अगर कोई लेके नहीं जाएगा, ये दोबारा से गटर के अंदर चला जाएगा। व्हाट डज दैट मीन? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिकॉज जो डिपार्टमेंट वो कचरा लेकर आता है, उसके बाद का डिपार्टमेंट फॉलो अप करना चाहिए। अच्छा आपने कचरा निकाल दिया, चलो अब हम ट्रक लेकर आते हैं, उसको भरकर लेकर जाते हैं। जब ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है तो कोऑर्डिनेशन
ऑटोमेटिकली हो जाता है। 6th पॉइंट क्या, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल को चलाना इज एन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, हॉस्पिटल को चलाना इज एन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, होटल को चलाना इज एन एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, बट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट जॉब। मतलब सब वहां पे ये होटल चल रहा है, ये बैंक चल रहा है, क्या वो इफेक्टिवली चल रहा है, क्या वो एकदम अच्छे से चल रहा है, ये वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन पर। If the organizing function is being done perfectly, then automatically it leads to administration which is effective. आपने दवाई ले लिया, अनफॉर्चुनेटली दवाई ले लिया बट कोई असर ही नहीं हो रहा है इसका, तो वो इफेक्टिव नहीं है। दवाई लिया और तुम्हारा दर्द चला गया, अरे क्या क्रोसिन लिया मैंने रे, क्या मैंने पैरासिटामोल लिया रे, दवा 1 घंटे के अंदर हाँ उसको इफेक्टिव कहते हैं। सो यू जस्ट डोंट वांट समथिंग विच इज हाँ ये दवा है, नहीं क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो एडमिन ऑर्गेनाइजिंग का काम अगर सही होगा तो एवरीबडी इन द ऑफिस इन द कंपनी नोज उनका काम असरदार है, जो भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ग्रुप में उन लोग को बनाया गया है, काम बराबर से हो रहा है। द मेन वर्ड्स, राइट पर्सन, राइट जॉब विद द राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बराबर से पता है तुमको गलती होगी किसको पकड़ना है और किसको क्या अधिकार दिया गया है क्या काम को आगे लेकर जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। यस, व्हेन पीपल नो कि मैं ये टीम का हूं, वो उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन करते हैं उनका काम का परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ जाता है एंड ऑटोमेटिकली यू सी अ कंपनी में जो मशीन होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो मेन होते हैं ना, बाय मेन आई मीन द लेबर, तो उसमें फीमेल भी आ जाएगा, ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ओके, उनकी मेहनत बढ़ जाती है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो पूरा कंपनी ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करता है, वो कंपनी ग्रोथ करता है और वो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। सो आई रिपीट, इफ समथिंग हैज टू ग्रो, ओके, ऑर्गेनाइजिंग हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इफ समबडी प्लान्स, मैं तो बॉडी बिल्डर बनूंगा, मैं बहुत दूर हूं उससे, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई प्लान करता है तो यू ऑल्सो वॉन्ट ग्रोथ, यू वॉन्ट योर मसल्स टू डाइवर्सिफाई, थोड़ा मसल इधर आए, थोड़ा मसल इधर आए, थोड़ा मसल उधर जाए, ओके, हाँ। सो ऑर्गेनाइजिंग, तुमको क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तुम्हारा डे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्लान भी तो करना पड़ेगा। प्लान कर लिया, उसके बाद क्या है, मैं इतना खाऊंगा, इतना प्रोटीन, इतना ये, अरे बाबा तुम्हारे पास कुछ डिवाइस होना चाहिए मेजर करने के लिए, तुमको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये भाजी खाऊंगा, ये खाऊंगा, यू हैव गॉट टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस। सो तो ही यू कैन एक्सपेक्ट personal growth and diversification. Similarly, in a company, if the organizing function is done properly, it leads to growth and diversification. Next, creates sense of security. You see, when you get a job, future में चलो 5 साल बाद आप काम ढूंढने गए, 6 साल बाद आप काम ढूंढने गए and you got a job, good, आपने ऊपर वाले को थैंक यू बोला, बट सिक्योरिटी नहीं है। मतलब क्या है, अरे वो बॉस ने बोला मैं टेम्पररी हूँ, 3 महीने तक काम देखेगी, अरे मतलब 3 महीने बाद वो काम से निकाल सकता है मेरे को। यू विल नॉट गिव योर फुल परफॉर्मेंस, क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे एक डर है आपको, इधर या तो इधर, क्या काम से निकाल सकते हैं यार, परमानेंट नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इज डन, ओके, इट लीड्स टू द एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स having job security, because when a worker knows कि मेरा जॉब, ओके, अगर मैं काम बराबर से करूं, कोई रीजन ना दूं मेरे बॉस को, मेरे अपर एस्टैब्लिशमेंट को, अपर मैनेजमेंट को मुझे निकालने के लिए, मुझे काम से निकाला नहीं जाएगा, तो आई विल परफॉर्म बेटर, ओके, मैं और एफिशिएंटली और बेटर लेवल पर काम करूंगा। इफ एम्प्लॉइज, वर्कर्स, ऑफिस स्टाफ, ये लोग सब टेम्पररी है, तो टेम्पररी लोग क्या बोलते हैं, यार हमको तो यहाँ पे कल परसों के बाद काम करना तो है नहीं, ओके,
हम अपना पगार ले लेंगे और हम चले जाएंगे। हाँ, तो अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा, ऐसा एटीट्यूड किनका रहता है कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वी ओनली वर्किंग फॉर द मनी, वी आर नॉट वर्किंग फॉर व्हाट यू कॉल प्रोग्रेस एंड फॉर द गुड ऑफ द कंपनी ना, वो हमको क्या करना है, हम तो 2 दिनों के मेहमान हैं। सो अगर ऑर्गेनाइजिंग बराबर से हो, इट लीड्स टू जॉब वॉट सिक्योरिटी, एंड व्हेन पीपल हैव दैट जॉब सिक्योरिटी, automatically their efforts, their efficiency, their performance goes up, which leads to the betterment of the entire company. नौवा मुद्दा, scope of innovation बराबर, those people जिनके पास जॉब की सिक्योरिटी है, एम्प्लॉइज, ओके, वो लोग अपना काम बेटर करने के लिए they think, because they know, अगर especially मैनेजर्स लोग वो से लोगों को, वैसे एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, वो थोड़ा छूट देते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग में दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वही काम 5 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से सेम तरीके में हो रहा है, ओके, देन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सो व्हेन समवन डज अ जॉब, ओके, फॉर 2 years, 3 years, 4 years, then he gets very good at it. एंड ही इवन गेट्स आइडियाज कि ये काम जो 1 घंटे में होता है, नहीं, अगर थोड़ा सेटिंग चेंज करे तो यही काम आधे घंटे में होगा, 30 मिनट में होगा। अगर ये डिवाइस को यूज करें, ये इक्विपमेंट को यूज करें, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, ऑटोमेटिकली ये काम थोड़ा फास्ट होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट one of the features and the importance of organizing is what? It creates job security. Those people have that job security. They think कि मैं यहाँ पे थोड़ा innovate, मैं कुछ अलग ट्राई कर सकता हूँ, मेरा जो मैनेजर है, जो मेरे ऊपर बैठा है, वो मेरे को थोड़ा छूट देता है ये काम को, बिकॉज ही नोस कि अगर वर्कर्स लोग अपने काम को बेटर तरीके से कर सके, ऑटोमेटिकली कहाँ ना कहाँ पे कॉस्ट की बचत होगी और पूरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। ओके, लास्ट मुद्दा आज का, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू सी व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? घर में अगर कोई चीज कोई काम करके देता है तो वो एक तरीके से रिसोर्स होता है। आपका वॉशिंग मशीन एक रिसोर्स है, ओके, उसमें आपको पानी डालना पड़ता है और वो कपड़े धोता है। ओके, नाउ आप जो पानी डालते हो ना, ओके, वो एक लेवल तक पहुंचना ही चाहिए, वरना वो वॉशिंग मशीन घूमने का काम, ओके, सर्कुलर मोशन में जाने का काम नहीं करने वाला है। ओके, सो व्हाट यू शुड नो, मैं 1 पैंट, 2 जीन्स, 1 शर्ट, अरे बाबा अगर तू सिर्फ 4 कपड़ा डालने वाला है बट उसको 4 कपड़े का पानी नहीं लगेगा, वो तो आधा या 90% पानी मांगता ही मांगता है। सो इफ यू वांट टू यूज योर वॉशिंग मशीन, ऑप्टिमम, नॉट थोड़ा, ज्यादा आपको यूज करना है। ओके, जो भी आपके पास है, गाड़ी रहेगा, ऑप्टिमम यूज करो। ऑप्टिमम यूज का मतलब यहाँ पे गाड़ी में कैसे होता है, अरे मैं जाता हूं 20 किलोमीटर चलाकर, मैं खुद जाता हूं गाड़ी में। अगर आप जाते हो और बाजू की सीट खाली है, पीछे की सीट खाली है, तो दोस्तों को बोलो ना बैठने के लिए, ऑटोमेटिकली गाड़ी का बेटर ऑप्टिमम यूज होगा। When organizing happens, every resource जो कंपनी के पास है, वो मैन होगा, वो मशीन रहेगा, वो पैसा रहेगा, उसको बेस्ट यूज किया जाता है, वेस्टेज अवॉइड किया जाता है, या वेस्टेज को जितना कम होता है उतना कम किया जाता है। सो इफ यू डू ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन वेल, इट इज गिविंग यू काइंड ऑफ 10 बेनिफिट्स एंड इट गिव्स यू उसके 10 इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं। नाउ टू रिमेंबर दिस 10 मुद्दास, देखो भाई, जब भी पढ़ाई करते हो ना, ऊपर वाले के अनुग्रह की जरूरत है, सबको जरूरत है। ओके, कौन कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी सियाना क्यों ना रहे, ओके, समवेयर और दी अदर, जब आप एक एग्जामिनेशन के लिए, सर मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, आई नो एवरीथिंग, बुक का हर शब्द मेरे को पता है, बट माय डियर, टू हैव गुड हेल्थ, ओके, जब एग्जामिनेशन के दिन पे घर से बाहर निकलते हो सही सलामत एग्जामिनेशन तक, सेंटर तक पहुंचने के लिए और वापस आने के लिए, ऊपर वाले से तो थोड़ी ना कुछ आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी।
So all of us require grace, and we require grace in our studies. Okay, Anugrah, we also require grace to remember this particular organizing का 10 मुद्दा. तो हमारा जो कोड वर्ड है वो क्या है? ग्रेस इज जस्ट अमेजिंगली स्वीट. हुज ग्रेस? हिज ग्रेस, ऊपर वाले का. नाउ जो हाईलाइटेड अल्फाबेट्स है ना, उसमें से आपको आपके 10 मुद्दे मिल जाएंगे. ग्रेस से क्या आता है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्सेज, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ए. एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ग्रेस एंड इज जस्ट अमेजिंगली स्वीट. Scope of innovation, sense of security, defines the job properly, facilitates administration, and lastly specialization. Grace is just amazingly sweet. मीठा. Okay, if you remember this code word, automatically आपको organizing के लिए अलग से कुछ organize करने का जरूरत नहीं है. Okay, I hope the entire फंडा व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उससे बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि जो मुद्दे ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस के लिए है वो आप एज एडवांटेजेस एज बेनिफिट्स भी यूज कर सकते हो. ओके, एंड ग्रेस इज जस्ट अमेजिंगली स्वीट. इफ यू रिमेंबर this becomes your code for remembering the 10 points of this particular function of management. Not taking up any more of your time, and very quickly reminding you, if you have understood the explanation and all the different muddas that we have discussed concerning organizing, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर लीजिए. डिसलाइक करते हो कोई हर्ज नहीं है. इम्प्रूवमेंट हम कैसा लेकर आ सकते हैं, कोई सजेशन है आपके पास, कोई रिक्वेस्ट है आपके पास, कोई तकरार या कंप्लेन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए. सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दूसरे दोस्तों तक, सहपाठियों तक, दूर दराज में रहने वाले लोगों तक, रिश्तेदारों तक ये चैनल और लेक्चर्स की जानकारी आप ज़रूर पहुँचा दीजिए. हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, हम व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है. ओके, टिल द टाइम हम अगली बार मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. जल्द ही मिलेंगे इस चैप्टर के, वेल नॉट ये वाला, ओके, बट जो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके कंटिन्यूएशन के साथ में. गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ.